Am I audible? Yes, sir. So the topic of today's discussion is discover the lasting solution. By lasting solution, we mean we have to find the permanent solution to our sufferings. All right. So before starting the session, I would like to ask a very simple question from all of you. What are the real problems in our life? What according to you? Please reply in whatever means you are comfortable. Please reply. So how to become a successful person, how to chase our goals. Okay. Anyone else? Sir, figuring out the purpose of our life. Okay. Nice. So, are these real difficulties? What do you think? So nobody is asking. Let's proceed. So, as discussed earlier, there are two types of solution to any problem. First is temporary one and the second one is permanent. So the modern science offer only stopgap solution and cannot put a full stop to the problem of life. Whereas Vedic wisdom offers perfect spiritual solution that put a full stop to the problem of life. And we will see how. So let's see what are the real problems of life. Is there any specific criteria which defines the real problems of life? Yes. So in the Bhagavad Gita, Bhagavan Shri Krishna in chapter 13 has clearly stated the criteria which defines a real problem. So what people think real problems in their life are given in this slide, that they are having no physique, failed in exam, I'm not handsome, I'm not having any girlfriend, like this. Are these real difficulties or problems? Ask yourself. No, sir. No, right? So what Sri Krishna says, a problem can be considered a real problem if it fulfills the following three criteria. And what are those criteria? It is common to all. Nobody wants it. And the third one is nobody can avoid it. All right, what are they? It is common to all, nobody wants it, and nobody can avoid it. So can you tell me example of such problems which satisfy all the three criteria? Failure. What? Failure. Sir. Failure. It's a result. Is it a problem? सर फेलियर मतलब फेयर होता है कि फेलियर का एक तरह से. Okay. Sir, Anybody sadness. else? Sadness, but it's not common to all. Not everybody is sad at the same time. So laziness. But there are people who are very energetic
goes to the gym, workout. Is everyone lazy? Do you think so? सर किसी ना किसी पॉइंट पे तो होते ही है लेजी, मतलब 24/7 they can't work out, they can't active. No, but सर it's इच्छा है, not satisfying all the three criteria. सर इच्छा है। Okay, let me tell you the real problems. ओके सर। ब्रेन की थॉट्स को कंट्रोल में रखना। Okay, okay. हाँ सर, जस्ट We'll लाइक see. फील और So these are the four real problems. You must be surprising that why birth is considered as a real problem, aren't you? यस सर। So these are the four problems which fulfill the criteria of a real problem as given in Bhagavad Gita: birth, disease, old age, and death. These are the problems that nobody wants, nobody can escape from them. All right. So let's see one by one. Why are they considered as real problems? So first, talk about birth. Why birth is considered as a why birth is considered as a problem? So you can see, for 9 long months, the human fetus lies crammed within the darkness of the womb, scorched by the mother's gastric fires, jolted by sudden movements in a congested womb. Hungry worms in the abdominal cavity torment the child. The child passes stool and urine in the same pack. तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी प्रॉब्लम फेस करता है एक फीटस, यानी एक चाइल्ड वुम में। अभी एक वीडियो देखेंगे हम जिसमें काफी क्लियरली आपको पता चलेगा उन प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आपने देखा, इमेजिन करिए कंडीशन कि एक रूम में आपको 9 मंथ्स के लिए पैक कर दिया जाए और जो सारी एक्टिविटीज हैं आपकी लाइफ की वो उसी में करना है आपको। उसके बाहर आप जा नहीं सकते, कंप्लीट डार्कनेस है और काफी सारी डिफिकल्टीज। तो उस कंडीशन को आप इमेजिन करिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा सरवाइव करना। जैसा कि अभी उसका छोटा सा एग्जांपल हमने अभी लॉकडाउन में देखा था। हम लोग कुछ मंथ्स के लिए कंप्लीटली अपने होम में बंद हो चुके थे, तो कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी जनता। इसलिए बर्थ जो है
उसको एक रियल प्रॉब्लम कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब सेकंड जो रियल प्रॉब्लम है वो है ओल्ड एज। ये भी जो तीनों क्राइटेरिया है उनको सेटिस्फाई कर रही है कि इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, nobody wants it, and it's common to all. You can see a beautiful lady who was once having a wrinkle-free face, and now due to old age, she has become like this. This is Sylvester Stallone, a bodybuilder champ. You might know how he is looking in the old age, right? So old age, we can't avoid it. We want to remain young forever, right? But very soon we start growing old and our bodies become weak and fragile. That's why the cosmetic industry is flourishing day by day, providing many solutions to get rid of pimples, wrinkles, etc. Right? So हमने अभी वीडियो में देखा कि कैसे जो इंसान होता है उसे लगता है कि मैं सारी उम्र ऐसा ही फिट, यंग, जवान रहूंगा। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है ट्रुथ कि एक दिन उसको बूढ़ा होना पड़ेगा। All right, so let's move ahead. The third one is disease. Nobody want it and nobody can't avoid it. Okay, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके लाइफ टाइम में उसको एक भी डिसीज ना हुई है। कोई ऐसा? तो डिसीजेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं और हमें उन वी डोंट वांट डिसीजेस। ऑलराइट, द लास्ट वन इज डेथ।
So there are some shlokas from Garud Mahapuran. What they states, let's see. Indeed, O Garuna, when the hour of death approaches, then by chance a certain disease raises up its head. The organs grow weak, troubles start showing their power, as if all the sudden millions of scorpions have stung the person. तो इन श्लोक में वो जो लास्ट डेथ ऑफ आवर होता है उसमें जो पेन एक बॉडी फील करती है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो पेन होता है वो मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियंस आपके शरीर में काट रहे हो उसके बराबर होता है, इसलिए डेथ को भी एक रियल प्रॉब्लम कंसिडर किया गया है. In that diseased condition, the dying person's eye bulge due to the pressure of air from within, and his glands become congested with mucus. He has difficulty in breathing, and there is a rattling sound within his throat. Thus, he dies most pathetically. तो इतना खतरनाक दृश्य होता है मौत का, देख सकते हैं आप. So apart from these 4 real difficulties, there are 3-4 miseries also. And what are they? Let's see. These 3-4 miseries are first due to our own mind and body, due to other living entities, and due to natural disasters. Can you guess the example of these 3? What are the miseries what we are facing due to our mind and body? Please answer the question. Am I clearly audible to all? Future. Anything else you want to add? Due to our own mind. Actions. What? Depression. Yes, right. Stress, depression, suicidal thoughts, right? Yes, sir. And due to other living entities? So, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके लिए? नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपन कैसे खतरे में रहते हैं दूसरे लिविंग एंटिटीज के कारण. सर एक तो बीमारियां हो गई वायरस के कारण. हाँ, insect bites, mosquito bites. Yes, sir. Anything else? और सर ड्यू टू सर जो एनिमल्स अटैक होते हैं या फिर. Yes, absolutely right. And what about natural disasters? Disaster, yes, sir. पॉल्यूशन, लाइटनिंग, Tsunamis, earthquakes, right? Yes, sir. Yes, sir. So these are 3-4 miseries. So what's written in our Vedas? These miseries are of 3 kinds. First one is Adhyatmika Klesh, miseries due to our own body and mind. Second one is Adhibhautika Klesh, miseries due to other living entities. And third one is Adhidevik Klesh, miseries due to natural disasters. So these are some examples, and there is some news headlines. India Today News that teen suicide rates have tripled in last 25 years.
Please unmute yourself. सर हेलो Yes. सर, ये सुसाइड थॉट्स के बारे में है ना सर, इसके बारे में सर थोड़ी बहुत रिसर्च हमने भी की थी। हाँ तो हाँ, तो सर इसमें एक हिसाब से हमने एक्सपीरियंस भी किया था। तो इसमें ऐसा होता है जैसे जो अपनी ब्रेन की करंट सिचुएशन होती है या फिर जो अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन होती है, हम्म, तो उस हिसाब से अपन जैसे कि जिंदा रहते, तो उसके लिए भी कुछ वजह रहती है कि जो हमारे घर वाले हैं, हमारा परिवार है, इसके लिए हम जिंदा हैं, या फिर हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन के लिए हम जिंदा हैं। तो ये हाँ होता है। लेकिन जब हमारी करंट सिचुएशन आती है या फिर कोई जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें ऐसा होता है, कैमरे की तरह होता है कि किसी एक चीज पे फोकस, बाकी सब चीजें धुंधली। मतलब जो हमारे जीने की जो बाकी वजह रहती हैं, वो सब दिमाग में धुंधली पड़ने लगती है और एक ही चीज ज्यादा हावी हो जाती है। तो वो बॉडी को इतना ज्यादा पेन करती है, इतना ज्यादा कि हद से, जो कि शायद अकॉर्डिंग टू साइंस के शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे 15 एक साथ कई सारी हड्डियां टूटें, इस हिसाब से ब्रेन को पेन फील होता है। तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कहीं हम दूर चले जाएं, एकदम अकेले, फ्री हो जाएं बॉडी से एकदम। वैसे मन हाँ फिर से सुसाइड थॉट आने लगते हैं, किसके इससे अच्छी तो मौत ही है, ऐसे दर्द। तो फिर इसी के चक्कर में लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर कोई टैबलेट लेते हैं, जैसे डिस्प्रेन, ये। हाँ, हम तो आगे देखेंगे वो ये सब। तक होते हैं। हाँ सर, ऐसे ऐसे सुसाइड थॉट आते हैं। Yeah. So here are some example of second one. Misery due to other living entities: snake bite, someone is hitting you, mosquito bites. Okay. And the third one, there are some of the pictures of misery due to natural disasters like tsunami, earthquakes. So, are there any solution to these problems? Yes, definitely. Science has provided some solution, but those solutions are temporary. Let's see how they are temporary. So you can see machineries, different advancement in technologies, how advanced tools and techniques are there in hospitals, which can be used to detect diseases and diagnose them. Although we are advanced in medical science, still our plans of good health and happiness are thwarted with newer and newer diseases. तो इतना एडवांसमेंट कर चुका है साइंस, फिर भी क्या परमानेंट सोल्यूशन मिल रहा है? कोरोना वायरस इतना छोटा है, लेकिन उसकी एक एग्जैक्ट वैक्सीन कोई भी कंट्री बना पाया अभी तक? नो सर। नहीं बना पाया ना। तो वही अच्छा। बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू कि टेक्निकल एडवांसमेंट तो कर रहे हैं हम, लेकिन जो सोल्यूशन है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी सोल्यूशन मिल रहा है। Here you can see Muhammad Ali, the greatest boxer of all time. Once he considered him the greatest. Now after old age, let's see what is its this present condition. You can see he is not able to handle the flame even properly, right? Due to the Parkinson disease. तो जो मॉडर्न साइंस से जो सोल्यूशन मिले हैं, उनने हमें टेम्पररी सोल्यूशन तो दिया है, लेकिन उसके कारण जो है एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जैसे कि हमने एडवांसमेंट इन ट्रेन्स, जैसे हम यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने एडवांसमेंट किया, लेकिन उससे काफी डिजास्टर हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, लाइफ का लॉस हो रहा है। हमें पेन किलर लिए हैं, उनके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहा है। तो जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है साइंस,
वो फुल स्टॉप नहीं लगा सकती हमारी सफरिंग। Here is a quote by Martin Luther King. What he said: "Now man can fly like a bird in the sky and swim like a fish underwater in a submarine. The only problem is he cannot walk on the land like a human because of pollution." तो इसमें क्लियरली ये कहना चाह रहे हैं वो कि हमने इतना एडवांसमेंट तो कर लिया, लेकिन उस एडवांसमेंट के साइड इफेक्ट के कारण एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है कि हम अच्छे से लैंड पर रह नहीं पा रहे, है ना। यहाँ हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमने प्लास्टिक क्रिएट किया था और कैसे प्लास्टिक हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, कैसे प्लास्टिक हमारी लाइफ में घुस चुका है। तो देखा आपने कि एक टेम्पररी सोल्यूशन तो दिया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि नहीं। जैसे कि ये मिसाइल्स बॉम्ब्स वगैरह डिस्कवर किए गए, बनाए गए, इन्वेंट किए गए वॉर्स के लिए, लेकिन इनने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दे बिकम वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ। Science has invented bombs that can only blast living bodies into pieces. They can't create life. Absolutely correct. So let's see how science provide temporary solutions. So if you are having white hairs, use hair dye. If you are having wrinkles, use facelift. If you are facing back pain, stomach pain, use painkillers. If you are facing breathlessness and death, use oxygen tubes. So are these permanent solution? What do you think? नो सर। और सर हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं, बस उसे टाल रहे हैं, ना कि एक परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया गया है कि एक वुमेन कितनी अट्रैक्टेड है, जो घुड़सवार है उसको देखकर कितनी अट्रैक्ट हो रही है कि कितना हैंडसम है, कितना रिच है। लेकिन रियलिटी में क्या है, जब रियलिटी एक्सपोज हुई तो वो एक बूढ़ा सा था जिसकी तोंद निकली हुई थी, सर पर बाल नहीं थे और उसका घोड़ा भी काफी वीक सा था। तो जो टेम्पररी सोल्यूशन है वो, जो रियलिटी है उसको कुछ टाइम के लिए हाइड कर देते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो एक ना एक दिन एक्सपोज हो ही जाती है। So science and technology cannot stop old age, cannot eradicate diseases from earth, hardly has understanding of life and death. तो परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं दे पा रही साइंस? क्योंकि जो लाइफ और डेथ के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्लियर साइंटिस्ट को, इसलिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं। ओनली सुपरफिशियल लेवल पर हमको सोल्यूशन मिल रहा है किसी भी प्रॉब्लम की। Luxuries and comfort offered by science and technology cannot satisfy the soul. जैसे किसी फिश को अगर आप वो पानी से बाहर निकाल दो और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो, तो क्या उसको अच्छा लगेगा?
क्या वो सेटिस्फाई रहेगी पानी से बाहर होकर? नो सर। मर जाएगी सर। तुम दुनिया की सारी फैसिलिटी ला दो ना, पर उसको तो पानी में जाने का मन करेगा, करेगा कि नहीं? तो Yes, ठीक sir. वैसे ही है कि जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम बेसिकली कहाँ, वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ लोक। ऑल राइट। तो हम कुछ टाइम के लिए इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा फैसिनेटेड हो गए इस मटेरियल वर्ल्ड से कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमको वापस जाना है ये भूल गए, और जो हमें रियल हैप्पीनेस मिलेगी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर ही मिलेगी। The soul can only be satisfied and happy in a spiritual world, which is his natural home, just as fish will naturally be happy when put back in water. So now I am going to narrate a story of Desolate Island. तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति निकला था हंटिंग के लिए और वो धोखे से किसी वैली में गिर जाता है। तो वहां पर कुछ आदिवासी लोग उसे उठाकर ले जाते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं और उसे अपना किंग बना देते हैं। और उसे ये पता चलता है कि 31 दिसंबर को गॉड किसी व्यक्ति को वहां भेजते हैं उनके यहाँ, जिसको वो अपना किंग बना देते हैं और अगले साल से वो राज करता है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। लेकिन वो आदमी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछता है कि मुझसे पहले भी तो कोई किंग रहा होगा, उसका क्या हुआ? तो उन लोग बताते हैं कि हम उस किंग को एक बोट पर बिठाते हैं और उसको अंडमान निकोबार आइलैंड में फेंक कर आ जाते है ना। तो वो आदमी काफी क्लेवर था। अब उसने क्या सोल्यूशन निकाला कि उसने जो सारी फैसिलिटीज उसे जो लाइफ में चाहिए, यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्रिक्स वगैरह, जितनी भी लग्जरियस आइटम चाहिए थे, उसने एक एक करके बोट में रखे और डे बाय डे वहां अंडमान निकोबार में पहुंचा दिए, ताकि जब उसका 1 ईयर ऑफ पीरियड कंप्लीट होगा वहां वो हैप्पी लाइफ जी सके। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो मटेरियल वेल्थ और एक्टिविटीज में इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड में हमको जहां जाना है वहां के लिए हमने कुछ पहले से कलेक्ट करके रखा ही नहीं। ओनली वेल्थ अक्यूमुलेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो स्पिरिचुअल अकाउंट वो तो खाली पड़ा है। और वो स्पिरिचुअल अकाउंट कैसे फुलफिल होगा? बाय रीडिंग होली बुक्स, involved in spiritual activities, chanting, association of good devotees, right? So here are some lessons what we learn from the story I've narrated. And what's the difference between a wise man and a foolish man? A wise man has a firm faith in God, whereas a foolish man has no faith in God, lives life according to laws of God, while the foolish eat, drink, and be mercy philosophy. A wise man remembers the temporary nature of the world, but the foolish forgot the temporary nature of the world and enjoy sinfully, not caring for the future. The wise man follows a regulated life of principles to ultimately attain God. And the foolish one is envious of others, living in unregulated life and goes to hell. So you can see here the difference between a wise man and a foolish man. These are some characteristics of wise and foolish man. So in this slide, a beautiful analogy is given that this life is like a journey and we all are passengers. All right. And one day we'll have to leave this world. एक ना एक दिन हम सभी को इस वर्ल्ड को लीव करना, कोई आज करेगा कोई कल करेगा, लेकिन एक ना एक दिन हर किसी को इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर जाना है।
So there is a shlok from Mahabharata, Van Parv. Hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in the world. कितनी गहरी बात की गई कि हजारों सालों से लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन इंसान इतना मूर्ख है कि उसे लगता है कि मेरी तो मौत आने नहीं है कभी, और वो डेथ के लिए कभी प्रिपेयर ही नहीं करता अपने आप को। जो फुलिश होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, that he is mad after pretty pleasures of life, indulge in sinful activities and invite ghastly future, sees everything in temporary but is still in blind to truth, break God's law due to uncontrolled senses. Here is one another beautiful analogy. You can see that कि यहाँ पर काफी सारी बकरियां हैं, वो घास खा रही हैं और वो इतनी ज्यादा अटैच हो गई हैं घास से, उन्हें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जो उसके बाद जो होने वाला है उसके बारे में वो प्रिपेयर ही नहीं कि नेक्स्ट उन्हें स्लॉटर हाउस में जाना है। ठीक उसी तरह हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इतने ज्यादा अटैच्ड हो गए हैं कि जो हमें नेक्स्ट वर्ल्ड में जो आना है उसके लिए हमने प्रिपरेशन ही नहीं करी। हाउ फुलिश आर वी, राइट? The goat is seeing his friends being killed and he will be next, but he is happy with short-lived pleasure. So we have seen some temporary solution provided by science and technology. Now it's time to look for permanent solution, and permanent solutions are given by Vedic wisdom. Let's see how. So Vedic wisdom provide permanent solution, and how it provides the solution? So by asking two questions: why I am suffering, and what is the goal of my life? Why I am suffering in this material world? And the second one is, what is the purpose of my life? Why I am here? So first we see the answer to the first question. So here you can see a child who's sitting on a street. So we suffer the threefold miseries and four real problems of life because we have turned away from the God and we are acting sinfully against God's law. Okay. तो हम सफर क्यों करते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को गॉड से अलग कर लिया, दूर कर लिया, और हम सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और जो गॉड के जो लॉ है उससे फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे कि एक चाइल्ड अपनी पेरेंट्स की कस्टडी से दूर हो गया, यानी घर छोड़कर भाग चुका है, अब वो स्ट्रीट में बैठा हुआ है, बट नाउ ही इज एक्सपोज टू डेंजर। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स कस्टडी में नहीं। इन सेम वे we are away from the custody of our parent. Who is our parent? The super soul, God, right? So what are the solution to these problems? Let's see one by one. What we have to do is aligning with God helps us overcome sufferings. Yeah, it means we have to engage ourselves in spiritual activities like chanting, discussing about the holy books, right? Now let's see the answer to the second question. What is the goal of our life? What's the purpose? Why I am here in this material world? So you can see the life cycle of a body, life cycle of a
man or anything. So who are we? We have to realize that we are not only this body of flesh and bones. We are actually the soul. We are actually like the shirt. As a person put on new dresses, giving up old ones, the soul similarly accept new material bodies, giving up the old and useless body. जिस प्रकार हम अपने कपड़े चेंज करते हैं वो जब पुराने हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो अपनी सोल होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है जब वो बॉडी यूजलेस हो जाती, ओल्ड हो जाती. सो वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल. The soul leaves the gross body behind and is taken to another womb based on the quality of desire stored in this subtle body at the time of death. तो जो नेक्स्ट बॉडी अटेन करेगी सोल, उसका भी एक क्राइटेरिया है कि वो किस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट किस बॉडी पर आपकी सोल जाएगी. So just like the same person moves from one vehicle to another, here you can consider this person as the soul. He is changing the vehicle only, right? And these vehicles are human bodies. The spirit soul moves from one body to another body. So who decide what will be our next body? So in Bhagavad Gita, it has been stated that whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. यानी कि at the time of death, जो ह्यूमन बीइंग रहता है जिस चीज से ज्यादा अटैच्ड होता है, यानी जिस चीज के बारे में सोच रहा होता है, उसी से रिलेटेड बॉडी उसे नेक्स्ट लाइफ में मिलती है. और किस चीज पे डिपेंड करता है? और डिजायर्स इन द माइंड, गुड एंड बैड कर्म. यानी कि इस जन्म में हमने जो कर्म किए, वेदर गुड और बैड, एंड व्हाट आर आवर डिजायर्स एंड द थिंग्स दैट वी आर टू मच अटैच्ड टू, उस बेसिस पर ही हम नेक्स्ट बॉडी अटेन करेंगे. यानी कि जिसे काफी ज्यादा मीट ईटिंग पसंद है तो वो कोई कार्निवोर एनिमल बनेगा. काफी सिंफुल एक्टिविटीज करी है जिसने, वो इसी प्लेनेट अर्थ में दोबारा जन्म लेगा. लाइक दिस ओनली. सो लेट्स talk about law of karma. So what it states that as you sow, so shall you reap. Every action has an equal and corresponding reaction, which is basically the third law of motion. Karmas are of two types, instant karma and delayed karma. If you punch someone, you will definitely get a punch in return, right? And the delayed one is if you sow a seed, you will get a plant, but after a little later. In human form of life, we have got developed intelligence to discriminate and lead responsible lives. But if one engages in sinful activities of, then what are those sinful activities? यानी कि हमें इतनी बुद्धि तो है कि सिंफुल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करना है, फिर भी हम जानबूझकर उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो हम जानते हैं कि वो सिंफुल एक्टिविटीज क्या है. What are those four pillars of sinful activities? The first one is meat eating. अब meat eating sinful activity क्यों है? क्योंकि मीट हम जिस एनिमल से मिलता है उसको हम जब हंट करते हैं तो उसमें जो फियर होता है और उसके बाद जो एंगर आता है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है उस मीट को खाने के बाद, जिससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम. सेकेंड है इंटॉक्सिकेशन, नशीले पदार्थों का सेवन करना.
थर्ड वन इज गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, जुआ खेलना। एंड फोर्थ वन इज इलिसिट सेक्स, यानी इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बिफोर मैरिज एंड पोस्ट मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल दीज। यानी जो ये जो 4 एक्टिविटीज है, इनमें इन्वॉल्व होना ही हमारी सारी सफरिंग्स का कॉज है। अंडरस्टूड? व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज मीट ईटिंग, देन इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड illicit सेक्स। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि मीट ईटिंग करेगा इंसान तो नेक्स्ट जन्म में वो टाइगर बनेगा। यदि वो दिन भर सोएगा तो नेक्स्ट लाइफ में वो भालू बनेगा। यदि कोई नेकेड घूमता है, काफी एक्सपोज्ड होकर घूमता है, यानी आपने नल कुबेर और मणिग्रीव की स्टोरी सुनी होगी, हु आर द सन्स ऑफ कुबेर, जो कि नेकेड होकर गंगा किनारे वाइन पीकर खेल रहे थे विद वुमेन्स, तो उन्हें वृंदावन में वृक्ष बना दिया गया था। ठीक उसी प्रकार काफी एक्सपोज्ड होने का जिसको शौक होता है उसे नेक्स्ट लाइफ में ट्री बना दिया जाता है। So these are our karmas in present life, and based on these we will get our next life. If we obey God's law of following the principle of, so किन principles को follow करना है वो देखते हैं। पहला austerity, यानी कि chanting, sacrificing यानी संन्यास ले लेना, dedicating your life to God. Third one is knowledge, यानी getting knowledge from scriptures, Bhagavad Gita, holy books. Fourth one is association of saints and discussing spirituality. So these are some principles what we are supposed to follow, and following these principles we can attain the supreme destination, and we can get rid of the cycle of birth, old age, disease and death. यानी कि हमको बर्थ, ओल्ड एज और डिसीज और जो डेथ है इससे मुक्ति मिल जाएगी यदि हम ये जो 4 प्रिंसिपल है उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। If we obey the God's law of following ABCD formula देख लेते हैं। So A for association, B for books, association with devotees, books, reading scriptures, spiritual books, chanting the holy names of God, diet, eating sattvic food, not eating meat, engagement, seva, doing our karma, right? If you are a student, you have to study. अर्जुन का कर्म क्या था? युद्ध करना, क्षत्रिय था ना वो। The man who has escaped these 3 gates of hell, lust, anger and greed, O son of Kunti, perform act conduct conducive to self-realization and thus gradually attain the supreme destination. तो इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि कैसे आप सुप्रीम डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं। तो पहले आपको एक स्पिरिचुअल मास्टर की जो भी नॉलेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेदास को स्टडी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी, अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन करना पड़ेगा। तो ये क्या है? पाथवे, एक तरीके का पाथवे रोड मैप है टू अटेन द रियल प्लेजर एंड गो टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। So what Krishna says, after attaining me, the greatest soul
who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. So, कृष्ण क्या कहते हैं? जो योगीज हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है टू द कृष्णा, वो गोलोक वृंदावन में नेक्स्ट लाइफ में पहुंच जाते हैं, और जो भी लाइफ साइकिल है, डिसीजेस की, बर्थ, ओल्ड एज, है ना, इनसे उनको छुटकारा मिल जाता है, और दोबारा उनको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिजरीज का सामना नहीं करना पड़ता। तो एट द एंड what we have seen, that to get the permanent solution we have to follow some principles which are given in some Vedas and told by our some authorized gurus. तो इनका हम लोगों को फॉलो करना है, इन प्रिंसिपल्स का। तो जो भी जो मिसरीज है, रियल डिफिकल्टीज हैं, और थ्री फोल्ड मिसरीज है, उनको हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स समराइज दिस सेशन। So whatever we have seen is here. So these are some real problems: birth, old age, disease and death, threefold miseries, adhyatmika, adhibhautika, adhidaivika. And scientific solutions. We have seen some scientific solutions that they are temporary solutions. They do not provide the complete solution to our miseries. We have seen the example of the fish, which cannot get satisfied through temporary solution. Then we came to know about the story of Desolate Island and the difference between the characteristics of wise and foolish. Then after death, after that, we came to know about the solution provided by Vedas. Okay, so Vedas provide the permanent solution by giving answer to the question, why I am suffering and what is the purpose of me in this world. Okay, then we learn about law of karma and what sinful activities we have to avoid and which laws we have to follow. Okay, so here we come to the end of the session. If you are having any question, you may ask. हेलो सर। Yes. सर मतलब जो कृष्णा का प्रोनाउंसिएशन होता है वो कृष्णा होता है कि कृष्ण? एक्चुअली में जो हमारा जो इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज है, उसमें जो लैंग्वेज, उसमें स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम कृष्णा बोलते हैं, और लेकिन जो हम कृष्ण लिखते हैं, वो जो आखिरी में ना आता है वो Yes, पूरा sir. है, वो आधा नहीं है, इसलिए कृष्णा बोलते। कृष्ण अगर बोलते तो वो पूरा नहीं होता। ठीक है, तो सर रियल चैंट प्रोनाउंसिएशन सर कृष्णा। चैंटिंग में सर कृष्ण बोलना चाहिए कि कृष्ण? चैंटिंग में हमें कृष्णा बोलना चाहिए। कृष्ण। हरे थैंक कृष्ण। यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? Hello, sir. Yes. Sir, you talked about the pains when soul leaves the body. Yes. How we can avoid that pain? We can't avoid that pain. मैंने बताया ना कि जो
हम सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं। तो सोल्यूशन क्या है उसका कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम आए ही ना, तो वो पॉसिबल कैसे है? तो जो प्रिंसिपल है हमको उनको फॉलो करके जो हमारा डेस्टिनेशन है गोलोक वृंदावन, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमको जाना है, ताकि हम इस जो लाइफ साइकिल है, डिसीज, डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, इनसे मुक्त हो सके। तो हम इस वर्ल्ड में होंगे ही नहीं, तो उस पेन को फेस कैसे करेंगे? अंडरस्टूड? Yes, sir. So that even devotee have to face that pain if हाँ, he is living here. devotees have to face in this life only, right? क्योंकि अगर उनने अच्छे कर्म किए तो एट द टाइम ऑफ डेथ उनके दिमाग में कृष्णा से रिलेटेड चीजें चलती रहेंगी, और जो उनको नेक्स्ट लाइफ होंगी वो उन्हें स्पिरिचुअल प्लैनेट में ले जाएंगी। तो अगली लाइफ में उनको इस पेन को फेस नहीं करना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. तो हम जो नेक्स्ट लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जितना स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल अकाउंट है, उसका बैलेंस बढ़ा रहा है, ठीक है, ताकि हमको मुक्ति मिल सके और हम सफर ना करें हर लाइफ। Okay, sir. Thank you. Sir, what is sattvic food? सात्विक फूड जो होता है वो वेजिटेरियन फूड कह सकते हैं हम एक हिसाब से, जिसमें अनियन और गार्लिक को हम अवॉइड करते हैं, यानी जो मन को शांति दे। एंगर, ग्रीड, लस्ट वगैरह जो भी इमोशन वगैरह है वो हमारे माइंड में ना आए उसके बाद। और वो कृष्ण जी को मतलब पहले देना चाहिए। हाँ, वो ऑफरिंग, हाँ, इट्स वेरी नेसेसरी। What we have to do is first we should offer the food to Krishna, then we should take it as a prasadam. Okay, sir. Offering is very important. Yes, sir. Any other question? सर Yes. सर जो अभी एक स्लाइड थी उसमें बताया कि सबसे पहले गुरु का चयन करो, उसके बाद उनकी बातों को एक्सेप्ट करो और वेदास का नॉलेज लो, और फिर इसके बाद धार्मिक ग्रंथों का नॉलेज लो। उसमें एक पॉइंट था कि हाँ, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, तो देयर आर द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो सेंस को कंट्रोल करना एक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बाकी वो चारों चीजें हो जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी, लेकिन सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो सर उसको कैसे करें, या फिर कोई रोड मैप? सेंसेस को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि मेडिटेशन करें, हम चैंटिंग करें होली नेम्स की। तो जितना ज्यादा हम चैंटिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज्यादा हमारा माइंड फोकस्ड होगा, उतना ज्यादा हम गोल को अचीव करने के लिए फोकस्ड रहेंगे, राइट? हमारा माइंड शांत रहेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। सर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और आजकल इतनी बिजी लाइफ है, तो उसमें तो ये बहुत मुश्किल होता है कि मैनेज करना इस चीज को। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। हम 1-2 घंटा तो नहीं निकाल सकते क्या चैंटिंग मेडिटेशन के लिए? ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, मुश्किल से 10-15 मिनट, 20 मिनट काफी मेडिटेशन चैंटिंग वगैरह के लिए। इधर उधर टाइम वेस्ट ना कर कर हम मेडिटेशन में अगर टाइम इन्वेस्ट करें तो अपने माइंड को काफी शांति मिलेगी, रिलैक्स होगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। यस सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? सर लास्ट क्वेश्चन, यस। हमें ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी वैदिक और ये भगवत गीता की, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर कैसे ढूंढे, अपना गुरु जो है कैसे कनेक्ट हो? तो हमें ज्वाइन करिए आप, हम आपको सिखाएंगे। अच्छा, ओके सर। हम How? रेगुलर सेशंस लेंगे आपके भगवत गीता के, आपको वैदिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? यस सर। बोनाफाइड अथॉरिटीज हैं, Okay. जो भी नॉलेज मिलेगा वो प्योर एब्सोल्यूट नॉलेज मिलेगा।
गलत कुछ नहीं मिलेगा आपको। Okay, sir. And later on, we will also have meeting with spiritual gurus also. So you can join, you can trust us. Yes. So there is one question in chat box. अगर हम एक लाइफ में स्पिरिचुअल बन जाए तो हर अवतार में तो इसमें कहा गया है कि ओनियन खाएंगे हम काफी, तो उससे क्या होगा? तो जो ओनियन होता है वो आपके अंदर के जो ऐसे इमोशन होते हैं उसको, जो लस्ट है और एंगर है, यानी तमोगुण बढ़ाता है। ओनियन जो होता है ना, वो आपके अंदर जो माइंड में जो तमोगुण वगैरह होते हैं ना, लस्ट, ग्रीड वगैरह, उनको बढ़ाता है, जिसके कारण हम सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। Any more questions? So if it is over, we all can open our cameras and we can take a group photo. Sir, I have a question. Yes. Sir, means तो कृष्ण के जैसा हो ना? क्या? सर कृष्णा का मतलब कृष्ण जैसा होगा ना? कृष्णा का मतलब कृष्ण जैसा होना, ऐसा? हाँ, मतलब कृष्ण का मतलब होता है ना कि कृष्ण के जैसा, ऐसा होता है ना? कृष्ण का मतलब कृष्ण जैसा कैसे हो सकता है? कृष्णा इज द ओनली वन। सर वो कृष्ण होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्णा। यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। सर अभी ऑडिबल है? हाँ, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है मुझे थोड़ा आपका। हाँ बोलिए। नथिंग सर, कुछ नहीं। Do you want to know the meaning of Krishna? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णा, सो कृष्णा का मतलब तो ऐसा होता है ना कि कृष्ण के जैसा, इज इट करेक्ट? They both are same. Krishna and Krishna, they both are same. अगर छोटा बच्चा है वो कृष्ण कृष्ण बोलता है, ठीक है, तो भगवान भावना देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप मीनिंग क्या समझ रहे हो उनका, आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए। फाइन। It's just the way of pronouncing the name. The difference नहीं है, same ही है. It's just the way. And Krishna is only one, so how can someone be Krishna जैसा? सर देन फिर किसी का नाम कृष्ण क्यों नहीं रखते? ऑलवेज टू से कृष्णा। कृष्ण एक हिंदी शब्द हो गया, जैसे हिंदी इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं तो ए लगाते हैं ना एक लास्ट में, जैसे राम को इंग्लिश में रामा बोलते हैं। ओके सर। Okay, so everyone, please open your camera. Thank you.